हाय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं प्रीडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। इन दिस लेक्चर वी आर कवरिंग we have proposition, we have read about it, so why we need predicates, difference between predicate and proposition, and why we need quantifiers, and what is quantifier, how many types of quantifier there is: universal quantifier, existential quantifier, and there is some restrictive domain about implies and and operator in quantifier. So we deal with this topics in this lecture. So let's start our first topic: why we need predicates. We read about proposition. A simple statement which can classify in true and false is called proposition. Like Tina has passed the entry test exams, John has passed the entry test exam. तो इस तरह से हम टीना जॉन इस तरह जो नेम आप चेंज करते चले जाओगे स्टेटमेंट चेंज होता चला जाएगा. So we need a journal aspect of this proposition. Like X has passed the entry test exam. और x की आप वैल्यू दे दो टीना, तो इट बिकम्स टीना हैज पास द एंट्री टेस्ट एग्जाम. आप x की वैल्यू दे देंगे जॉन हैज पास द एग्जाम. तो हम चाहते हैं अपने प्रोपोजिशन को मोर जर्नल कर लें. ठीक है, ऐसा जर्नल स्टेटमेंट बना लें जहां हम x की वैल्यूज चेंज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात कर सकें. और फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन 3. अब we can't classify it as a true or false statement, so it's not a proposition. Okay, so how we can deal this type of statement, because x greater than 3 is true in some cases. For example, 4, 5, 6, 7, 8, and so on, this statement is true. But for 1, 2, 0 and negative number, this statement is false. So how we deal with this type of statement? So let's say we are try to develop a statement like that: every student of the university has passed the entry exam test. तो हमने every student भी कह सकते हैं, या हम student का नाम change करके उसका नाम भी कह सकते हैं. जैसे Tina has passed the entry test of the exam, or some student has taken computer science and some are enrolled in software engineering. अब हम कुछ बच्चों की या कुछ स्टूडेंट्स की बात करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे जब हम अपने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट या अपने प्रोपोजिशन स्टेटमेंट डिजाइन कर रहे होंगे. क्योंकि प्रोपोजिशन एक स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है, जिसे हम ट्रू या फॉल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ग्रेटर देन 3, इट्स नॉट अ प्रोपोजिशन, लेकिन हमें इस स्टेटमेंट को डील करना है अपने लॉजिक डिजाइनिंग में. तो हम कौन सा ऐसा स्टेटमेंट लेकर आए जो इसे डील कर सके. So we have some more journal form, like there exists some values of x for which x is greater than 3 is true. तो हमें कुछ ऐसा और more powerful statement चाहिए जो हम इस तरह के variables को भी डील कर सकें. हम इस तरह के every student some student की conditions को भी डील कर सकें. हमें एक ऐसा proposition statement चाहिए. And simple proposition logic is not expressive enough to deal with quantified values. Quantified variables means every student, some student, or in sub values of x this statement is true. So how we can deal with this type of statement? That's why we need predicates, more powerful statement to show these type of arguments. So let's start. What is predicate and what is quantify? So this need of powerful logic design is covered by the predicate. Predicate logic is an extension of proposition logic. जो हमने propositions पढ़े उसी की एक extension है, उसी की एक हमने आगे एक और form लेकर आए हैं जिससे हम अब x भी introduce करवा सकते हैं. Like x is greater than 3 is not a proposition, but if we write it as a predicate, p of x represent a predicate. x is greater than 3 means आप यहाँ x की वैल्यू दोगे तो ये ट्रू या फॉल्स में क्लासीफाई हो सकेगा. अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो 1 is greater than 3 becomes false statement.
If we take x is equal to 2, it is a false statement. If we take x is equal to 3, it is a false statement. If we take x is equal to 4 and above all number, then this is a true statement. तो अब आप जैसे जैसे x चेंज करोगे, ये प्रीडिकेट प्रोपोजिशन में चेंज होता चला जाएगा. इसी तरह प्रीडिकेट में आप मोर देन वन वेरिएबल भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल क्यू एक्स कॉमा वाई. ओके, यहाँ कैपिटल P है, हम इसको स्मॉल p से वैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट इज y इज इक्वल टू x प्लस 3. आप x की वैल्यू दो, y की वैल्यू दो, तो आपको पता चलेगा स्टेटमेंट सही है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बिकम अ ट्रू स्टेटमेंट. If x is 1 and y is 2, so 2 is equal to 1 plus 3 is a false statement. तो आप जैसे जैसे x और y की वेरिएबल असाइन करोगे, ये प्रीडिकेट ट्रू या फॉल्स में क्लासिफाई किया जा सकता है. तो सिंपल प्रीडिकेट को आप नहीं कह सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स अनटिल अनलेस आप इसमें x की वैल्यू असाइन कर दें. सो प्रीडिकेट इज दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल. अब हम ऐसे स्टेटमेंट्स पे आ गए हैं जहां वेरिएबल्स भी हैं. इससे पहले हम सिंपल प्रोपोजिशन की बात करते थे. फॉर एग्जाम्पल 1 is greater than 3, it's a false statement. 4 is greater than 3 is a true statement, but x is greater than 3, we can't say anything, so it's not a proposition. While p of x is a predicate. Predicate proposition जब बनता है जब आप x की वैल्यूज असाइन कर देते हो. ओके, so predicate statement involving variable, and we cannot classify it true or false until or unless variable assigned a value. जब तक आप x की वैल्यू असाइन नहीं करते, हम इसे true या false में क्लासीफाई नहीं कर सकते. And another example is P proposition है I bought a new car. It's a proposition. But what about PX? X bought a new car. अब हम ये predicate है, हम इसको ना true कह सकते हैं ना false कह सकते हैं. अब जब आप X में इसकी values assign करोगे, for example P John, तो X को हम replace कर देंगे X से. तो John को replace कर देंगे यहाँ, यहाँ X की जगह John आ गया और यहाँ X की जगह भी John आ गया. तो it becomes P John means John bought a new car. टीना, आपने एक्स को टीना, यहाँ एक्स की जगह टीना दिया तो यहाँ भी टीना आ जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा. तो पी टीना मीन्स पीना बॉट अ न्यू कार. अब डिपेंडिंग ऑन कंडीशन इट इज अ फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट आप क्लासिफाई कर सकते हैं. तो इस तरह प्रीडिकेट में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं. हम दो तरीकों से इसको देखते हैं. एक उसमें होता है एक्स, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. किस सब्जेक्ट के लिए आप बात कर रहे हो और क्या आप बात कर रहे हो, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या स्टेटमेंट है. जैसे पी ऑफ दिस, तो bought a new car. अब p of x अंदर लिख देंगे तो it becomes x bought a new car. So this is the predicate and x is the subject in this predicate. For example, px, x is a bird. So we can't say anything until unless we assign a value. P sparrow means sparrow is a bird. It's a true statement. Px is a greater than 3. We can't say anything until unless we assign a value. For example, 2. 2 is greater than 3 is a false statement. Okay, next is x is my friend. Who is x? So P Tina. Tina is my friend. Okay, it's a true statement. P x comma y. X is mother of y. So we are talking about whom? तो अब यहाँ values assign कर दी. P, Lena and John. Lena is mother of John. Okay, it's a false statement. If this condition is not true, so we can say that it's a false statement. So this type of statement is become sparrow is a bird proposition, and this whole statement is a predicate. Okay, so what about x is greater than 3? In some cases it is true, in some cases this statement is false. X plus 1 is greater than x. So x is greater than 3 is in some cases it is true, in some cases it is false, while x plus 1 is greater than x is true in all cases. जब भी किसी नंबर में 1 ऐड करोगे तो वो ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर ही हो जाएगा, तो ये हमेशा ट्रू होगा. Someone bought a new car. तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो x है इसकी कुछ वैल्यूज आ रही हैं. कभी कभार कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, कभी सब वैल्यूज के लिए ये ट्रू होता है. तो इन दैट केस वी नीड अ क्वांटिटी और एन एक्सटेंट ऑफ प्रीडिकेट. हमें बताना होगा कि प्रीडिकेट की किन वैल्यूज पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और किन स्टेटमेंट के लिए हमारा प्रीडिकेट फॉल्स है. तो अब जैसे x इज ग्रेटर देन 3, तो अब यहाँ नंबर्स तो नहीं देते रहेंगे कि 0 1 2 3 -1 -2 -3 इसके लिए ट्रू है एंड 4 एंड ऑल सो ऑन नंबर्स के लिए ये ट्रू है और बाकी के लिए ये फॉल्स है. तो इसके लिए हम लिख देंगे देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज. इसके लिए हम लिख देंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. तो ये हमारे पास अब क्वांटिफायर्स आ गए. क्वांटिफायर एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच अ प्रीडिकेट इज ट्रू. वो प्रीडिकेट का वो एक्सटेंट बताता है जिसमें आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा. सच दैट ऑल, सम, मैनी, नन, फ्यू, दीज ऑल आर एक्सप्रेस्ड बाय क्वांटिफायर.
such that x is greater than 3. So we can say that there exists some values of x for which this statement is true. There exists for all values of x, this statement is true. For some values of x this statement is true. For all values of x this statement is true. तो ये sum one all ये लॉजिकली हमें बता रहे हैं कि इसमें क्वांटिफायर की क्या वैल्यूज होगी, तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा क्वांटिफायर क्या है सच दैट। तो अच्छा, अब क्वांटिफायर पढ़ रहे हैं तो अब दो तरह के हम वैल्यूज देख रहे हैं क्वांटिफायर में। एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स से, ठीक है। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स मीन्स या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, जब भी हमारे डोमेन में जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए आपकी प्रॉपर्टी या पी ऑफ एक्स ट्रू होगा, तो हम कह देंगे कि हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे और उसका सिंबल ये होगा, सही है। For example, a predicate is true for every element under consideration. For example, this x plus 1 is greater than x. तो अब आप इसे लिखेंगे कैसे? ओके, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। For all values of x, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है हम कह देते हैं is the p of x. So we can say that for all values of x, p of x is true. ये जो हमने ऊपर लिखा है ये ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, किसी भी नंबर में वन रखो, यहाँ 1 + 1 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 + 1 इज 4 इज ग्रेटर देन 3। तो आप कोई भी नंबर इस प्रीडिकेट में दोगे हमेशा ग्रेटर x + 1 ग्रेटर ही आएगा x से। तो हम कह सकते हैं ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x p ऑफ x के लिए ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। अब इसी तरह कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में okay, in existential quantifier, we are talking about some values or at least one value. Okay, at least one value means एक या एक से ज्यादा। अगर हमारी क्लास में हम बात करना चाहते हैं कि एक या एक से कुछ ज्यादा स्टूडेंट फेल हो गए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स। okay, a predicate is true for there is one or more elements under consideration. For example, x is greater than 3. So if we take x is greater than 3 as a predicate, so p of x is greater than 3, so we can say that there exists some values of x for which this while के वो बहुत ज़्यादा है, सम नहीं है, 4 से लेके सो ऑन इनफाइनाइट तमाम वैल्यूज़ में अगर आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो ग्रेटर देन 3 आएगी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वन और मोर एलिमेंट का मतलब है कि जितने भी ज़्यादा हों, बस एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट हैं तो हम लिख देंगे देयर एग्जिस्ट एक्ट फॉर विच p ऑफ x इज ट्रू। ओके, ओके, अब वन बाय वन दोनों को समझते हैं, दोनों की एग्जांपल्स करते हैं। So this is called predicate calculus, where we read about predicate and quantifiers. तो जब हम अपने statements को predicate और quantifiers में change कर देते हैं, so functions बना देते हैं, so it's called a predicate calculus. Okay, now we are going to discussing about quantifiers, different quantifiers. The first quantifier is universal quantifier, which is true when p of x is true for all value of x in the domain. For example, अगर मेरी domain है मेरे all student या मेरी क्लास के स्टूडेंट, तो मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x आपके पास प्रीडिकेट है x स्टूडेंट हैज पास, तो फॉर ऑल का मतलब है कि ऑल क्लासेस पास। अगर कोई एक भी स्टेटमेंट मुझे ऐसा मिल जाता है जिसपे ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ पी एक्स इज नॉट ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, मीन्स कि अगर एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ तो मैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स यूज नहीं कर सकती, मैं ये सिंबल यूज नहीं कर सकती अगर कोई एक काउंटर एग्जाम्पल मिल जाती है। काउंटर एग्जाम्पल क्या है? एन एलिमेंट फॉर विच पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। कोई एक भी एलिमेंट अगर आपके पूरी डोमेन में ऐसा है जिसपे प्रॉपर्टी फॉल्स है तो आप फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स यूज नहीं कर सकते, या फिर निगेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स यूज करते हैं। अ सिंगल काउंटर एग्जाम्पल इज ऑल्सो वी नीड टू स्टेब्लिश दैट इज नॉट ट्रू, सही है। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स अगर ट्रू नहीं है, इसके लिए बस हमें ये देखना है कि अगर एक पे भी ट्रू नहीं है तो आप कह सकते हो कि अब ये फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू नहीं होगा, सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पे ट्रू नहीं तो सब पे ट्रू नहीं होगी, पूरी क्लास पास है, बस एक बच्चा फेल है तो मैं उसके लिए फिर देयर एग्जिस्ट का सिंबल यूज करूंगी, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स हो जाएगा, इसका ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव x + 1 इज ग्रेटर देन x,
सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, अगर हम पी ऑफ एक्स डिजाइन करते हैं एक्स प्लस वन is greater than x, so we can say that for all x p of x is true। तो ये x की तमाम वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर स्टेटमेंट है x इज लेस देन 2, तो अगर हमारे पास अब प्रीडिकेट है x इज लेस देन 2, तो ये 1 और 2 या 0 और नेगेटिव नंबर के लिए तो ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन जैसे ही नंबर 2 या 2 से ग्रेटर हो जाएगा, x इज लेस देन 2 फॉल्स हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फॉर ऑल x p ऑफ x इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा जब किसी एक या एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ओके, here is an also another example, x square is greater than 0। तो कहते हैं एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, ग्रेटर देन 0 मीन्स इट ऑलवेज बिकम अ पॉजिटिव नंबर। तो अब व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, इसका मतलब है किसी एक पे भी अगर फॉल होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट 0, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। सो एक भी अगर एग्जांपल ऐसी मिल जाती है जिसपे हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स बिकम फॉल्स, क्योंकि एक स्टेटमेंट वाइल के ये नेगेटिव पॉजिटिव हर नंबर के लिए ट्रू है, बस 0 पे ये, तो इसकी जो काउंटर एग्जांपल है वो 0 है, बिकॉज देयर इज एन काउंटर एग्जांपल ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल ना होती, इसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट ना करती, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होता। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर इसी तरह ही है जैसे हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर कब ट्रू होता है, जब p एंड q बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, देन इट इज ट्रू। p एंड q एंड r, थ्री स्टेटमेंट जब तीनों ट्रू होंगे तो ही स्टेटमेंट ट्रू होगा, कोई एक भी फॉल होगा तो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी अगर मेरी पूरी क्लास पे लग रही है या पूरी होल नंबर्स पे लग रही है, तो जब एक एक एलिमेंट पे ट्रू होगी तो ही स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू होगा, अदरवाइज इट बिकम्स फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर से शो करने का मतलब है कोई एक भी फॉल्स होगा तो आपका पूरा स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पे भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं होती, इसका मतलब ये है कि आप फॉर ऑल की बात नहीं कर सकते। अगर मेरा क्लास में सब स्टूडेंट पास है और एक फेल हो जाता है, तो मैं कहूंगी, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी पूरी क्लास पास है। सही है, तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स हो जाएगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी क्लास फेल है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स हो गया, किसी एक बच्चे के फेल होने से वो जो प्रॉपर्टी मैं पूरी क्लास के लिए यूज कर सकती थी अब नहीं कर सकती। मैं लिखूंगी देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, वाइल के वो 50 में से अगर 49 बच्चे ही पास है तो मैं इसी तरह लिखूंगी, फॉर ऑल एक्स नहीं लिख सकती इसके लिए, ये इसका मतलब है। ओके, okay class, now another example, what is the truth value of where p of x is true for x square greater than 10। तो हमारे पास जो प्रिडिकेट है वो ये है, और डोमेन कंसिस्ट ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4। नॉट एक्सीडिंग 4 मीन्स वी हैव 1 2 3 एंड 4। तो इन चार नंबर से हम चेक करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं। तो p1 स्टेटमेंट 1 इज लेस देन 10 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर p2 होता है तो वैल्यू आ जाएगी 4, 4 इज लेस देन 10, ओके इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर हम p3 लेते हैं, 3 3 is 9 is less than 10 is a true statement। p is a 4 and 4 4s are 16, it is 10, it is a false statement। 16 is not less than 10, so it's a false statement। 3 पे true मिला, सिर्फ एक पे false मिला, तो we can say that for all x p of x is false। ठीक है, इसका फॉल्स होने का मतलब होता है कि कोई एक या एक से ज्यादा वैल्यूज ऐसी हैं जिसपे आपकी प्रॉपर्टी फॉल्स है। ये मतलब नहीं होता कि ये सब पे फॉल्स है। ठीक है, तो क्योंकि 4 पे ट्रू नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। सही है, अब देयर एग्जिस्ट कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे यूज होगा, क्या मतलब है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे। ओके, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हम देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू। एन एलिमेंट का मतलब ये नहीं है हमेशा एक ही एलिमेंट होगा, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है,
तो इसको इस तरह से करते हैं। और अगर एग्जैक्टली वन का हो तो हम यूनिकनेस क्वांटिफायर कहते हैं। इसको इसी स्लाइड पे कवर कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स। देयर एग्जिस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन मार्क आ गया। इट मीन्स अब हम बात कर रहे हैं ओनली वन वैल्यू के लिए, जब आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ ओनली वन वैल्यू किसी एक वैल्यू पे एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट ये सिंबल यूज करते हैं। इट इज द यूनिकनेस क्वांटिफायर। अदरवाइज एक या एक से ज्यादा एटलीस्ट वन, अगर आपकी प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन पे ट्रू है तो फिर हम देयर एग्जिस्ट का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, फॉर सम वैल्यूज, फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि एक ही है या दो है या तीन है। क्लास में 50 बच्चों में से 49 बच्चे भाले बस एक फेल हो गया तो मैं ये नहीं कह सकती मेरी पूरी क्लास पास। बोलूंगी देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर सब नहीं है तो हम ये कह देंगे देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, लेकिन हम फॉर ऑल नहीं कह सकते। तो इन दैट केस जहां हमारी प्रॉपर्टी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे इम्प्लीमेंट हो रही हो लेकिन सब पे इम्प्लीमेंट ना हो रही हो, तो फिर हम देयर एग्जिस्ट का सिंबल या क्वांटिफायर यूज। ओके क्लास, अब वही एग्जांपल जो हमने फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए की थी, अब हम देयर एग्जिस्ट एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स के लिए उन्हीं एग्जांपल्स को एक दफा टैली करते हैं और देखते हैं यहाँ कौन सा सिंबल अब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो हमने देखा था फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स तो ये स्टेटमेंट फॉल्स था, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, but it is true for some values of x. For example 4 5 6 7 8 and so on, it's true statement, and it is false for less than 3 numbers. So we can write that statement p of x is x is greater than 3, and we can say that there exists some values of x for which p of x is true. ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर ऑल का सिंबल नहीं यूज करेंगे, यहाँ हम देयर एग्जिस्ट एक्स का सिंबल यूज करेंगे। ओके, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सो इज इट ट्रू? एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो किसी एक भी कोई ऐसी एग्जाम्पल अगर हमें मिल जाए जिसपे ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लिख सकते हैं एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, बट इट इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, जब भी आप ऐड कर दोगे किसी नंबर में वन तो हमेशा वो नंबर ग्रेटर ही हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इफ पी ऑफ एक्स इज एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये हमारा स्टेटमेंट है, तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। किसी एक पे भी ट्रू नहीं मिले अगर हमें तो फिर हम कह देते हैं ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एट नो देयर इज नो वन वैल्यू ऑफ एक्स है, ये एटलीस्ट वन वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम लिख देंगे देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, अब कहते हैं कि आपके पास अब जो प्रीडिकेट है वो है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10, और हमारी जो डोमेन है वो वही पॉजिटिव नंबर है, नॉट एक्सीडिंग देन 4, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 10 आना चाहिए। तो पहले हम P1 लेते हैं, सो इट बिकम 1 इज लेस देन 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 2 लेते हैं, इट इज 4, 4 इज ग्रेटर लेस देन 10, नॉट ग्रेटर देन, ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। फिर हम P3 लेते हैं विच इज 9, 9 इज ग्रेटर देन 10, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर हम लेते हैं P इज 4, 4 4 जा 16, 16 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि ये कंडीशन एक पे ट्रू हो गई तो हम कह देंगे देयर एग्जिस्ट एक्स P ऑफ एक्स इज ट्रू। अच्छा, फॉर ऑल के लिए जो हमने देखा था वो हमने लेस था, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10, इससे पहले जो एग्जांपल की थी। अब हम ग्रेटर देन कह रहे हैं, तो ये क्योंकि एक वैल्यू पे हमें ट्रू मिल गई इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स की जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एंड नहीं बल्कि और ऑपरेटर होता है, P1 P2 P3 में जैसे और ऑपरेटर लगता है, P और Q है, इट मीन्स कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। P और Q और R तीन स्टेटमेंट है, कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स होंगे तो भी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू ही आएगा। इसी तरह यहाँ सब कंडीशन फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स और एक ट्रू मिला, हमने कहा ओके एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स के ट्रू होने के लिए यही कंडीशन है कि अगर कम से कम एक भी वैल्यू ट्रू मिल गई तो ट्रू हो जाएगा। जैसे पूरी क्लास पास है, एक बच्चा फेल है, तो मैं कह दूंगी देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच P f of x मीन्स कि एक बच्चा फेल है तो देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर एक भी हमें कंडीशन फॉल्स मिल जाती है तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट
एक भी कंडीशन अगर हमें फॉल्स नहीं मिलती तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। और अगर वो कंडीशन किसी पे भी नहीं लग रही, मेरी क्लास में कोई बच्चा भी फॉर एग्जांपल पास नहीं होता, मैं लिख दूंगी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स भी हमारे पास अब फॉल्स हो गया। ठीक है, कोई एक बच्चा ही पास नहीं हुआ, किसी पे भी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो पी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स होता है जब हमारे पास कोई एक भी फॉल्स हो जाए, और देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स होता है जब हमें कोई भी वैल्यू ना मिले ट्रू, तो फिर ये फॉल्स होगा। ओके क्लास, अब क्वांटिफायर में कुछ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स है, लाइक if we I am saying that in all integer if a number is divisible by 2 then it is a even number। हमेशा हमेशा ऐसा होगा कि जो भी नंबर आप 2 से डिविजिबल होगा हम कह देंगे कि वो नंबर हमारे पास एक इवन नंबर है। सो वी कैन से दैट अगर पी है x इज डिविजिबल बाय 2 एंड x q ऑफ x है x इज अ प्राइम नंबर। Oh sorry, it's not a prime, it's a even number। ठीक है, we are talking about even numbers। so for all x p of x implies q of x। अगर इसका मतलब है कि अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो इट इम्प्लाइज करेगा, हमेशा ऐसा होगा कि वो नंबर क्या हो, एक इवन नंबर भी हो, तो ये ट्रू है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते फॉर ऑल एक्स इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज अ इवन नंबर, तो हम फॉर ऑल के साथ एंड नहीं यूज करते, हमेशा फॉर ऑल के साथ हम इम्प्लाइज का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं स्ट्रॉबेरीज आर रेड, इट मीन्स ऑल स्ट्रॉबेरीज आर रेड। तो इफ अ fruit is a strawberry, if a fruit is a strawberry then this implies that it is red also। ठीक है, और हम किस पे के लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज एफ एक्स के लिए। ओके, अब सम एप्पल्स आर रेड एंड सम एप्पल्स आर ग्रीन, तो हम कहेंगे फिर हम क्या करें, अगर कभी एग्जाम्पल एग्जिस्ट करे और कभी ना करे तो फिर इन दैट केस हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो सम वैल्यूज के लिए या देयर एग्जिस्ट के लिए यूज होता है एंड ऑपरेटर। लाइक एक एग्जांपल है यहाँ पे, कहते हैं सम ऑड नंबर्स आर प्राइम। ठीक है, सम ऑड नंबर्स लाइक 1 3 5 इज अ प्राइम नंबर। सही है, फिर आ जाता है 9, 9 भी एक ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तमाम ऑड नंबर प्राइम नहीं होते लेकिन कुछ ऑड नंबर प्राइम होते हैं। So there exist some values of x such that x is an odd number and a prime number। तो जब कुछ पे वैल्यूज पे एग्जिस्ट करती है और कुछ पे नहीं, तो फिर हम एंड का सिंबल यूज करते हैं, हम कहेंगे कि कुछ अगर ऑड नंबर भी है एंड प्राइम नंबर भी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो ऑड नंबर है तो इम्प्लाइज करेगा कि वो प्राइम नंबर भी होगा, क्योंकि तमाम ऑड नंबर प्राइम नहीं होते। 9 भी एक ऑड नंबर है, वो प्राइम नहीं है। इसी तरह 33 भी एक ऑड नंबर है, वो प्राइम नहीं है। तो तमाम ऑड नंबर प्राइम्स नहीं होते, तो इसलिए अगर देयर एग्जिस्ट टैग यूज करते हैं कुछ वैल्यूज के लिए तो फिर हम इम्प्लाइज की वैल्यूज यूज नहीं करते, हम एंड की कंडीशन यूज करते हैं। तो आप जब भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करें तो इस बात का ध्यान रखें, फॉर ऑल के लिए इम्प्लाइज यूज होगा और देयर एग्जिस्ट के लिए एंड ऑपरेटर यूज होगा। ओके, सो योर होमवर्क इज ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। अभी हमने जो लास्ट स्लाइड पे किया था वो लिखा था ऑल ऑड नंबर्स there exists some odd number which is prime number, लेकिन अब हम कह रहे हैं all prime numbers are odd। सही है, जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो कोई इवन नहीं होता, ऑड ही होते हैं। तो अब इसको बताएं आप कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे और स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स योर असाइनमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह निगेशन ऑफ क्वांटिफायर और एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड देन मल्टीपल एंड नेस्टेड क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।